Welcome students, this is me, your English teacher Harsh, and we are here to start the chapter of the book Vistas, and this is the chapter number 2, and the name of the chapter is The Enemy, and this is written by Paul S. Buck. It's a story of the time of the World War. An American prisoner washed ashore in a dying state at the doorstep of a Japanese doctor, and there was a confusion in the mind of the Japanese doctor, Mr. Sadao Hoki, whether he is to save him as a doctor or whether he is to hand him over to the army as a patriot of the country. Meanwhile, I tell you what, it was the bank of the Japanese sea, the Japanese coast it was, and the husband and wife, Mr. Sadao Hoki, who was a doctor, and his wife Hannah. They were living happily there. I'll tell you later about both of them, but right now he is in a confusion whether to save him or whether to hand him over to the army of the country. He remembers the past. When he was a child, his father took him to the sea, near the sea, at the sea beach. He used to tell him about the future of Japan. He used to say, Sadao, when he was a child, his father used to say him that the future of Japan is not limited, and Sadao did actually the same. Sadao worked hard, was sent to America at the age of 22 to do a degree or to become a surgeon. He studied in surgery and medicine in America. When he came back to Japan, he was 30 years of age, and before his father died, he saw him as a great surgeon and as a great scientist as well. All in all, Dr. Sadao had fulfilled all the desires of his father. And there is an important thing I want to tell you about Dr. Sadao. He has discovered a method by using that he can completely clean the wounds. Means if a person is shot by the gun and he is wounded badly, Sadao, the doctor, the surgeon, the magical surgeon, can completely clean the wounds of that man. So he was very important to the country Japan and to the Japanese general as well. They didn't send him abroad with the army because the old general might need an operation anytime. So he might need Sadao here in the country. So he was kept in Japan. Sadao and Hannah. There is a love story. Love story of Sadao and Hannah started in America. They were studying there, both of them. They met in America at the house of Professor Harley. At the first attempt, when Sadao saw Hannah for the first time, he thought that he will marry this girl, but there should be a confirmation that she should be a Japanese girl, because he knew very well that his father is not going to accept any girl related out of the Japan, girl who is pure in race and who should be a Japanese girl. So finally they married, and they got married, and it's all the past, I tell you what. Come back to the present. Right now, Sadao and Hannah both are standing in the porch of their house. Suddenly they saw something black. It was a man there, a man coming out of the sea. They went near him. Finally they came to know that the man who was washed ashore with the sea, who was an American prisoner, he was wounded badly, bleeding badly. Probably he had been shot with a gun at the right side of his lower back. So this was it. और जो हमने स्टार्ट किया है विस्टस बुक का चैप्टर नंबर 2 द एनिमी, और इसको लिखा है पर्ल एस बुक ने।
ये टाइम था वर्ल्ड वॉर का, जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका और जापान एक दूसरे के दुश्मन थे। तो एक अमेरिकन प्रिजनर समुद्र की लहरों में बहता हुआ मरने की स्थिति में, इन अ डाइंग स्टेट, वो पहुंच जाता है घर की दहलीज पर, डोर स्टेप पर, किसके, जिसका घर समुद्र के किनारे पर था, और वो था एक जापानीज डॉक्टर सेडाओ, डॉक्टर सेडाओ हॉकी। सेडाओ हॉकी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल डॉक्टर के सामने ये कन्फ्यूजन पैदा होता है कि वो उस प्रिजनर को एज अ पैट्रियट ऑफ द कंट्री, देशभक्त होने के नाते, क्योंकि अमेरिका जापान का दुश्मन है और वो प्रिजनर भी अमेरिका का ही है, तो वो भी ऑब्वियसली जापान का दुश्मन ही हुआ, तो उसको आर्मी को हैंड ओवर करे, या फिर क्योंकि वो एक डॉक्टर था और उसके सामने एक डाइंग स्टेट में एक आदमी था जो कि उसका एक पेशेंट था, तो उसे एज ए डॉक्टर वो सेव करे, उसकी ज़िंदगी बचाए। तो ये कन्फ्यूजन था उसके सामने। डॉक्टर सेडाओ और उसकी वाइफ हैना दोनों जापानीज कोस्ट पे, जापानीज समुद्र के किनारे रह रहे थे। इसी बीच उसको बचपन की याद आती है सेडाओ को, और वो कहता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पिताजी मुझे समुद्र के किनारे घूमने ले जाया करते थे, और वहाँ वो कहते थे कि जापान का जो फ्यूचर है वो इन्फिनिट है, अनलिमिटेड है, उसे कोई लिमिट नहीं कर सकता। और सेडाओ ने भी जापान के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए वैसा ही किया, हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की। अमेरिका गया, जब वो 22 साल का था तब उसके पिताजी ने उसको अमेरिका भेजा पढ़ाई करने के लिए, सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए। तो उसके लगभग 8-9 साल बाद जब वो 30 साल का था तो वापस जापान में आया, और तब तक वो एक रीनोन्ड सर्जन बन चुका था। उसके पिताजी की जो ख्वाहिश थी कि उनके बेटे को एक सर्जन बनता हुआ, डॉक्टर बनता हुआ वो देखे, वो भी उसने पूरी की। और डॉक्टर सेडाओ के बारे में एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, सेडाओ ने एक डिस्कवरी कर ली थी कि वो किसी भी इंसान के अगर गोली लगी है, इफ़ ही शॉट बाय द गन, तो वो उसको कम्प्लीटली क्लीन कर सकता है, उसके घाव को कम्प्लीटली क्लीन कर सकता है। और यही उसकी खूबी थी, उसकी खासियत थी कि जो जनरल था जापान का, उसने सेडाओ को युद्ध में, दूसरे डॉक्टर्स जो युद्ध में सैनिकों की मदद करने गए थे वहाँ पर नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि एक ऐसे प्रोमिनेंट सर्जन की जापान में ज़रूरत थी। कभी भी जो बूढ़ा जनरल है उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसका ऑपरेशन कौन करेगा? ऑब्वियसली सेडाओ, द परफेक्ट डॉक्टर। इसी बीच सेडाओ और हैना के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी लव स्टोरी है। वो अमेरिका में मिले, जब अमेरिका में सेडाओ स्टडी करने गया तो हैना भी वहाँ स्टडी करने गई थी कोइंसिडेंटली। तो एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हार्लीज, हालांकि उनका और उनकी वाइफ का व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं लगता था उन लोगों को, लेकिन वो फिर भी उसके घर पढ़ने जाते थे। वहाँ वो मिले। जब सेडाओ ने हैना को पहली बार देखा तो उसने सोच लिया था कि दिस माइट बी द गर्ल आई वांट टू मैरी, लेकिन शादी वो तभी करेगा जब उसके पिताजी की शर्त पूरी होगी। क्या? कि जो हैना है वो जापानीज़ होनी चाहिए, प्योर इन रेस, शी शुड बी प्योर इन रेस एंड शी शुड बी अ जापानीज़ गर्ल। फाइनली जब सेडाओ को पता चल गया कि वो एक जापानीज़ गर्ल है और पसंद तो उसको थी सही पहले से ही, तो जापानीज़ रीति रिवाज से उनकी शादी हो गई। इट्स ऑल द पास्ट, ये पास्ट की बातें हैं। प्रेजेंट में हम आते हैं तो अभी क्या हो रहा है, सेडाओ के घर पे जो कि समुद्र के किनारे पे है, वहाँ पर सेडाओ और हैना दोनों हस्बैंड वाइफ खड़े हैं। उनको अचानक से समुद्र के किनारे बहता हुआ एक आदमी दिखता है, एक काली काली सी चीज़ दिखती है। पास में जाके जब वो देखते हैं तो तब पता चलता है कि ये तो एक आदमी है जो समुद्र से बहता हुआ बाहर आ रहा है। और फाइनली उनको पता चलता है कि ये एक अमेरिकन प्रिजनर है, एक वॉर प्रिजनर है, कैदी है, एक युद्धबंदी है, और इसका ये वहाँ से भाग के आया है, किसी ने इसका पीछा किया है, गोली मारी है, इसके गोली भी लगी हुई है, घाव लगा हुआ है, खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। तो कुल मिला के सेडाओ और हैना के सामने एक मुसीबत खड़ी हो जाती है कि एक उनके दुश्मन कंट्री अमेरिका का एक वॉर प्रिजनर उनके घर के सामने दहलीज पे, डोर स्टेप पे आके पड़ा है, एक डाइंग स्टेट में, मरने की स्थिति में। वो या तो उसको बचाए एक गुड ह्यूमन बीइंग होने के नाते और डॉक्टर होने के नाते, या फिर वो उसको हैंड ओवर कर दे आर्मी को ताकि वो अपने हिसाब से देख ले। और हाँ, एक और थर्ड ऑप्शन भी है, उसको पहले डॉक्टर होने के नाते ठीक करे और फिर उसको हैंड ओवर कर दे आर्मी को, लेकिन फिर क्या, आर्मी वाले उसको फिर मार देंगे। तो सेडाओ और हैना इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं, ये देखेंगे हम इस कहानी के पार्ट 2 में। दिस वाज द पार्ट 1
That's the end of the part 1. This story will be divided into 3 parts because it's a big chapter. So to make you understand clearly, I have divided this chapter into 3 parts. This was the first part. Thank you very much for watching. Thanks. Bye bye.